So CUET UG 2025 exam analysis is going on. Today 14th May 2025 shift 1 analysis. So सबसे पहले स्टूडेंट का फीडबैक, गैट वॉज बिट लेंथी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. सो ओवरवेलमिंगली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैथ, ये दो पेपर लेंदी रिपोर्ट हुए हैं, मींस उसमें 60 मिनट्स कम लग रहे हैं. अदरवाइज time is sufficient. QA was dominant in general aptitude test. QA was dominant. Now there might be some topics which have blurred areas, like they can be considered in QA also, they can be considered in LR also. For example, clocks and calendar questions can be considered in QA as well as reasoning. So QA was dominant. We have to see the paper in detail to really understand this, but still QA was dominant. Moderate to difficult level, this is again subjective, but the major feedback from GAT is easy to moderate, but this student found the GAT from moderate to difficult. It all depends, it might be difficult also, but one thing is for sure, there is no similarity between the shifts. अगर एक shift easy है तो दूसरा भी बहुत वैसा ही easy है. There are differences in shifts also between in the same subject also. तो ये भी देखने को मिला है. ठीक है. Moderate difficult level, arithmetic was majorly present, वो तो होता ही है QA section में. Major part is arithmetic. Trigonometry of class 10th was also there. LR was easy, had coding, decoding, series and puzzles. Now see, if the question is from clock, do you consider it in LR or quant? It all depends. GK was static GK, also had some science related questions, was also mostly history based. But GAT today 14th May shift 1 report is that there are questions from current affairs also. So you have to be cautious. You should not just completely leave current affairs questions. You should have some kind of revision going on for current affairs also. Yes, the major part of GK is static GK without any doubt. ये तो अभी तक feedback आ ही रहा है. But do not ignore current affairs also. Do manage time in general aptitude test as the questions are a bit tricky. तो GAT और मैथ दोनों में थोड़ा लेंदी पेपर रिपोर्ट हुआ है. फॉर अकाउंट्स, क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टनरशिप, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फ्रॉम बुक 3, वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम रेशियोज, रेस्ट थ्योरी, केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विच वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. ये भी फीडबैक है स्टूडेंट से. फॉर इकोनॉमिक्स, मैक्रो वॉज अ मेजर पार्ट. ऑथर ऑफ अ बुक वॉज ऑल्सो आस्क्ड. माइक्रो वॉज easy. So microeconomics जो chapters add हुए हैं इस साल as compared to the previous years of economics syllabus of CUET UG, तो micro easy ही आ रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. Case study was from micro and money and banking, both were not difficult. ठीक है, तो economics भी relatively easy paper ही है. अब जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, हालांकि उस स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया मॉडरेट डिफिकल्ट, बट ज्यादा जो फीडबैक आया इजी टू मॉडरेट का ही है. क्यूए की बात करें, क्वेश्चन फ्रॉम एपीजीपी, क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चंस, मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये भी बाकी जगह से फीडबैक कलेक्ट करके ये समझ में आ रहा है. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, पीएनसी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मीन मीडियन मोड, ये 2 बार लिख दिया है. मीन मीडियन मोड भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी आया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. गैट इजी टू मॉडरेट. रीजनिंग की बात करें तो अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन, सीरीज को कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, रैंकिंग, डायरेक्शन, कैलेंडर, विजुअल रीजनिंग, वाटर इमेज, एम्बेडेड पिक्चर्स, पिक्चर सीरीज. सो रीजनिंग में भी काफी है. ब्रॉडली देखने को मिल रहा है कि आउट ऑफ 50, 1/3 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन QA, राइट, 15-16 फ्रॉम LR एंड 15-16 from GK. लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो 40% पेपर, बिकॉज लास्ट ईयर देयर वर 60 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 60, 24-25 क्वेश्चन, 40% पेपर was of GK. But this year it's almost 1/3 as far as GAT is concerned, QA, LR and GK. ठीक है, GK करंट अफेयर्स were there. Yes, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे. सो क्वेश्चन ऑन सुनीता विलियम्स, बिकॉज ये रिसेंट इवेंट ही है जब सुनीता विलियम्स वापस आई हैं ऑन अर्थ. साइंस के 3 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री बेस्ड, हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन थे, क्लासिकल डांस, विच कंट्री हैज द स्मॉलेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, हैवीएस्ट गैस, लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सब क्वेश्चन गैट में जीके के आए हैं. ठीक है, क्लियर है. इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो में से 1722 क्वेश्चंस इनटू 2 माइक्रो क्वेश्चंस वर देयर. कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर सरप्लस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई कर्व एप्लीकेशन,
मैक्रो की बात करें 722 क्वेश्चंस, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पूरा सिलेबस कवर हुआ है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, चेक कर सकते हो, तो आप छोड़ोगे नहीं कुछ भी सिलेबस में। अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट पेपर रिपोर्ट हुआ है। अकाउंटिंग एंड पार्टनरशिप में से 2-3 क्वेश्चंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में 10 से 12 क्वेश्चन, काफ़ी वेटेज है। शेयर एंड डिबेंचर में 10 क्वेश्चंस, रेशियो एनालिसिस में 4 क्वेश्चंस। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वाज एन ऑप्शनल यूनिट व्हेन द सिलेबस वाज डिक्लेयर्ड दिस ईयर बाय एनटीए, बट स्टूडेंट्स की तरफ से रिपोर्ट हुआ है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन को कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही होगा। तो ये भी एक मेजर चेंज है। स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे एंड दे आर राइटिंग मेल्स टू एनटीए आल्सो, लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज दिस हैज टू बी ऑप्शनल पार्ट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस, फिर मिलेंगे जल्दी ही। ऑल द बेस्ट और लगे रहिए, डटे रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।